پانی تیزی کے ساتھ اور کٹاؤ کے ساتھ ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے. کل کا نہ کوئی ریسکیو ٹیم آئی ہے، نہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ریسکیو بھیجی گئی ہے. بہت زیادہ یہاں پر سیلاب کی آمد ہوئی ہے، بہت زیادہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. ہماری ادھر کی جو فصل گندم کی ہیں اور جو سبزیاں سب تباہ ہو چکی ہیں، ہمارے مکان گر گئے ہیں. ساڈا مال رول گیا، ایسے رول گئے ہیں، ساڈے بچے رول گئے ہیں. پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی سے ہر طرف پانی ہی پانی. بھارت نے دریائے جہلم میں مزید پانی چھوڑ دیا. پانی کنٹرول لائن چکوٹھی سے آزاد کشمیر میں داخل. مظفر آباد میں دریائے جہلم میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا. پانی کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے. دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. جھنگ کو بچانے کے لیے ریلوے لائن کے قریب حفاظتی بند توڑ دیا گیا. چناب میں پانی کی سطح 8,17,000 کیوسک تک پہنچ گئی. ہیڈ قادر آباد سے آنے والے 2,22,000 کے ریلے کی چنیوٹ میں تباہی. 146 آبادیاں اور دیہات زیر آب. 14,000 مکانات، 2,91,000 افراد متاثر. چنیوٹ سے دیگر شہروں کو آنے جانے والی سڑکیں بند. ریلا جھنگ کی حدود میں داخل شورکوٹ کی ملحقہ آبادیاں سیلاب کی زد میں آ گئیں. علی پور چٹھا میں قادر آباد بیراج کے قریب سپر بند میں شگاف ڈالنے سے کئی دیہات زیر آب. سرگودا کی تحصیل کوٹ مومن میں 40 سے زائد دیہات متاثر. حافظ آباد کے قریب دریائے چناب کے قریبی سینکڑوں دیہات زیر آب. سیلاب سے مظفر گڑھ کے 100 سے زائد دیہات متاثر ہونے کا خدشہ. ظفروال میں نالا ڈیک کے سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں. سیلابی پانی میں بہہ کر 4 افراد جاں بحق، سینکڑوں ایکڑ فصلیں بھی برباد. راوی بھی بھپر گیا. کئی اضلاع میں فصلیں اور آبادیاں زیر آب. بڑے پیمانے پر تباہی. ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور. دریائے راوی میں شادرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. پانی کا بہاؤ 2,13,000 کیوسک تک پہنچ گیا. راوی سے ٹھوکر تک موٹر وے کے نیچے آنے والی بیشتر آبادیاں متاثر. بابو صابو، فاروق آباد، شفیق آباد میں پانی داخل. چون، مولن بال، مانگا منڈی میں بھی پانی داخل. مولن بال میں کئی فیٹ پانی جمع. مکین پریشان. ڈپٹی کمشنر کے مطابق شادرہ پر 8 سے 10 گھنٹے میں پانی کا بہاؤ کم ہو جائے گا. پھول نگر، پتو کی، نارووال، شیخ پورہ، ننکانہ، اوکاڑا، ساہیوال کے کئی علاقے بھی زیر آب. ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ. راوی میں ہیڈ بلوکی پر پانی کی سطح 1,23,000 کیوسک ریکارڈ. شادرہ اور بلوکی کے مقام پر پانی میں مسلسل اضافہ. ہیڈ سدھنائی کو بچانے کی تیاریاں. کمالیہ میں مائی صفورہ کے مقام پر بند میں شگاف ڈالا جائے گا. تحصیل پیر محل اور تحصیل کبیر والا زیر آب آنے کا خدشہ. بھارت سے آئے ریلوں کے باعث دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. قصور سے بہاولپور تک دریا کنارے آباد بستیاں زیر آب. ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ. لوگ گھر بار چھوڑنے پر مجبور. دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 2,61,000 کیوسک کا ریلا. پانی کی سطح 24 فٹ تک پہنچ گئی. قصور میں ہر طرف تباہی کے مناظر. دریائی پٹی پر 107 دیہات کے 60,000 افراد متاثر. پانی گھروں میں داخل. لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور. بھارت نے گٹی راجوکی سے قصور کے روہی نالہ میں بھی پانی چھوڑ دیا. بالا والا گاؤں کی فصلوں میں اچانک کئی فٹ پانی داخل. ٹریکٹر ٹرالی بھی پانی میں بہہ گئے. عارف والا میں 35 کلومیٹر پٹی پر 30 سے زائد دیہات سیلاب کی لپیٹ میں. پاک پتن، کنگن پور، بورے والا میں درجنوں دیہات زیر آب. بہاڑی اور میلسی میں بھی تباہی. بہاولپور میں زمیندارہ بند ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ رقبہ اور ڈیرہ جات متاثر. احمد پور شرکیہ میں بند ٹوٹنے سے قریبی بستیاں ڈوب گئی. لودھرا میں آدم واہن کی ہزاروں نفوس پر مشتمل آبادی کو خطرہ. بہاول نگر میں سیلاب سے 109 دیہات متاثر. چشتیاں میں بھی کئی موضع جات ڈوب گئے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. دربار صاحب کرتارپور کا فضائی جائزہ بھی لیا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے سیالکوٹ سیکٹر، شکر گڑھ، نارووال اور کرتارپور کا دورہ کیا. سیلابی صورتحال اور بارشوں سے متعلق تیاریوں پر بریفنگ. فیلڈ مارشل نے کرتارپور میں سکھ برادری سے بھی ملاقات کی اور متاثرہ شہریوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. فیلڈ مارشل نے جوانوں اور سول انتظامیہ کے درمیان مثالی کوارڈینیشن کو سراہا اور ریسکیو سرگرمیوں میں تیزی لانے کی ہدایت کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرتارپور سمیت تمام مذہبی مقامات کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا. مذہبی مقامات اور اقلیتوں کا تحفظ ریاست پاکستان اور اداروں کی ذمہ داری ہے.
मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से लोगों को बचाना है, कौमी मसले पर सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म के अहकामात पर मौसमियाती तब्दीली और मानसून के असरात से निपटने के लिए मौसर पॉलिसी मुरतब करने पर काम जारी। हंगामी सूरत हाल से निकलते ही वज़ीर आज़म आला सतह का इजलास बुलाएंगे, चारों वज़राए आला शरीक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीराबाद में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, वफाकी वज़ीर अता तारड़ भी हमरा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग, मुतासरीन को तिब्बी सहूलतों समेत खाना फराहम किया जा रहा है। ब्रीफिंग में कहा गया मुतासरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। रेस्क्यू टीम्स बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। अता तारड़ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी हुई, मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला मरीम नवाज की मुतालिका हुकाम को इमदादी सरगर्मियों में तेज़ी लाने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। वादा है पंजाब के तमाम मुतासरीन का हक उन्हें पहुँचाया जाएगा। अवलीन तरजीह अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। भारत ने बर वक्त मालूमात नहीं दी जिसके बायस नुकसान हुआ। DGPDM में इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा क्रॉस बॉर्डर्स कम्युनिकेशन ना होने से आलमी मीडिया ने भी भारत पर तनकीद की। दरिया चनाब में चिनियोट के मकाम पर सैलाबी रैले का बहाव जारी है। चिनियोट हेडवर्क्स में मजीद सैलाबी रैला गुजरेगा। DGPDM का 2 सितंबर तक अर्बन फ्लडिंग के खदशे का इजहार। उधर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, सूबाई वज़रा, रिलीफ कमिश्नर पंजाब और DGPDM की शिरकत। सैलाब मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का फैसला। तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर। दरियाई बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली कराने की हिदायत। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ। पाक फौज की 6 रेस्क्यू टीमें मुतहर्रिक। दरियाए सतलुज और दरियाए रावी पर रिलीफ सरगर्मियां जारी। हेड सुलेमान की और अटारी के मकामात पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन को मुंतकिल किए जाने लगा। कसूर में इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्तों की इमदादी कार्रवाइयाँ। 18,000 अफराद और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। ओकाड़ा में भी पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी है। नारोवाल, सियालकोट और दीगर शहरों में भी पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां। पंजाब में तबाही के बाद 3 से 4 सितंबर को गुड्डू बैराज से सैलाब सिंध में दाखिल होगा। 7 से 10 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजरेगा। बिफरी लहरों ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। कच्चे में मुकीम अफराद को निकला की हिदायत जारी। इस वक्त गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कच्चे में फसलें ज़ेर-ए-आब। दादू में भी 30 से ज़ायद देहात मुतासर। सैलाबी सूरत हाल में मानसून का नवा स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। खानेवाल में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फैसलाबाद, फूलनगर में भी बारिश। सियालकोट, गुजरावाला, रावलपिंडी, जेहलम और दीगर शहरों में भी बरसात मुतवक्के। चित्राल, दीर, सवाद, बुनेर, मानसहरा और दीगर बालाई इलाके भी बादलों के ज़ेर असर रहेंगे। कराची में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक तेज़ बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। हैदराबाद, सक्खर, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, दादू, लाड़काना में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। शहरी इंतजामिया के लिए अलर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मकबूजा कश्मीर में 1 हफ्ते से जारी बारिशों की तबाही। फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में अब तक 110 अफराद जाँ बहक। हज़ारों अफराद अपने घरों से महरूम हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जम्मू, सांबा, रियासी, डोडा और किश्तवाड़ इजलाह में दरियाओं और नालों की सतह खतरनाक हद तक बुलंद है। कम अज़ कम 50 देहात का राब्ता मुनक़ता। तालीमी इदारे भी 31 अगस्त तक बंद कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ जम्मू में 4 मज़ीद अफराद फ्लैश फ्लड्स की नज़र हो गए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 अरकान के इस्तीफे वापस कर दिए। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फैसल अमीन गंडापुर और अनीका मेहदी भट्टी के इस्तीफे वापस किए। दोनों अरकान ने इस्तीफ़ों की फ़ोटो कॉपीज़ जमा कराई थी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की दोनों को असल इस्तीफे जमा कराने की हिदायत। अभी तक किसी भी रुकन का कमेटियों से इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया। 20 अरकान ने कमेटियों से इस्तीफे जमा कराए थे। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा और अरकान असम्बली की नाअहली के खिलाफ दरखास्तें वापस कर दी। मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत।
पड़ीदन के करीब माल बरदार ट्रेन को हादसा, 9 बोगियां पटरी से उतर गईं, कई फीट तक पटरी भी उखड़ गई। हादसे के बायस अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक माल गाड़ी कराची से फैसलाबाद जा रही थी, रोड़ी से रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई। गजा पर कब्जे के इसराइली मंसूबे पर तुर्की का सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइल से तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ेदान के मुताबिक इसराइली तैयारों के लिए तुर्क फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी गई। तुर्क बहरी जहाज़ों को भी इसराइली बंदरगाहों के इस्तेमाल से रोक दिया गया। उधर बरतानिया ने इसराइल को असलहा नुमाइश में शिरकत से रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़ैसला गजा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों में शिद्दत के बायस किया गया। इसराइल ने बरतानवी इक़दाम को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। लंदन में बैनुल-अक़वामी असलहा नुमाइश का इनेकाद अगले माह किया जाएगा। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, सुबह से अब तक मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीनी डॉक्टर्स को ज़ख्मियों के इलाज की इजाज़त देने से इनकार। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेस का ऑपरेशन, 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली वज़ीर ख़जाना का एक और इश्तियाल अंगेज़ बयान, कहा हमास गैर मुसल्लह होने से इनकार करे तो इसराइल गजा की पट्टी का अपने साथ इल्हाक कर ले। इसराइली मीडिया का यमन में हौसी तंजीम अंसारुल्लाह के वज़ीर आज़म अहमद अरहावी की शहादत का दावा। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक अहमद अरहावी दारुल हुकूमत सना में अपार्टमेंट पर इसराइली हमले के दौरान साथियों समेत निशाना बने। वज़ीर दिफा समेत 10 सीनियर हौसी वज़रा को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो एक मकाम पर तंजीम के सरबरा अब्दुल मालिक अल हौसी की तकरीर सुनने के लिए जमा थे। हौसी क़यादत या इसराइली हुकाम ने बाज़ाबिता तस्दीक नहीं की। मोरितानिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। हादसे में 50 अफराद हलाक, 90 लापता हो गए। कोस्ट गार्ड्स ने 17 अफराद को जिंदा बचा लिया। कश्ती पर 160 से जायद अफराद सवार थे। ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक गमीबिया और सेनेगाल से था। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेनी बहरी जहाज सिम्फरोपोल को निशाना बनाया। ड्रोन हमले से जहाज को भारी नुकसान। यूक्रेनी बहरिया ने रूसी हमले की तस्दीक कर दी। हमले का एक रुकन हलाक, कुछ लापता हो गए। गुज़श्ता रोज़ कीव पर होने वाले रूसी हमले में अमवात 21 हो चुकी, 48 अफराद जख्मी।